गेटिंग स्टार्टेड विद pandas. So वहां पे pandas के कुछ functions हमने explore किए थे, and you all were familiar with all those functions जो हम already पढ़ चुके हैं, right? Yes, ये ma'am. हमारा डेटा सेट था. डेटा फ्रेम पे कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने थे, एंड वी नीड टू चेक व्हाट एग्जैक्टली इंडेक्स इज, व्हाट इज कॉलम्स, व्हाट शेप डज, व्हाट इज द रोल ऑफ हेड एंड टेल. सो वो सब हमने डिस्कस किया था, एंड द टू डेटा सेट व्हिच वी वर यूजिंग वाज दिस एंड दिस, right? So all have these two data sets with you. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. So let's continue with another part which is slicing and editing of your data. तो ये same file पे ही हम slicing और editing सीखेंगे. So let's say how can I access specific data within my data set or data frame? You must have these kind of questions, although you have gone through with that part as well, but we'll be repeating those particular queries once again, right? How can Python and pandas help me to analyze my data? Objective of this particular file is to make you understand how can we slice a particular part from a data frame, and the slicing which is based on the integer and based on the label. So we'll be working on both part. Apart from this, how to apply a particular condition, और जो query आप लगाएंगे, let's say आपको कोई condition लगानी है, the data which is greater than this value or less than this value or equal to this value or not equal to this value. So how to apply that particular part? Then let's move ahead. These are the files which we are working, the same file which we already discussed in last class, right? So we have imported those files, and those files are separated by semicolon. That's you all aware of it. Now how to slice your data using labels. Labels, you understand the name of the column or name of the index, how to slice that. So the first method is this: the name of your data frame, then the index parenthesis, and the name of your column. This is how we index it. Clear to all? Yes. Right? So we can write it like this as well, and we can write it like this as well. Without using index parenthesis, we can simply write the name of the column, and you need not to put that into a quotes here there. That will work like an object. Red underscore df, and this column I need to select, so you will get the output. Let me show you this one, right? And in case you want to check it this way from the second method, data frame dot the name of your column, then you will get the output from this as well. Clear to you? So you know both options available. This is based on the label. Now in case you want to select the specific part for a particular column, your data frame is red underscore df, and the name of the column from which you want to select a particular part, that is quality, and you want to apply head, means the top 5 from quality column. You can do that as well, right? In case you need to apply that on a whole column, how you will be writing a code? Red underscore df dot head. This is how you will be writing this code. Case you told? Any confusion? No, ma'am. Lata, you have any confusion with this? No. Right? So in case you want to select a specific column, so this is the syntax for selecting a specific column, right? Data frame, square bracket, and the name of your column, and then you can put dot head or dot tel, whatever you want to do. So this is how you can get the specific part of a particular column. Now let's say using this you want to create a new object using a particular column from a data frame. You want to create a new object, or you can say a new column. So how you will be doing that? Like this. What we did here, from this data frame, this column, I want to extract that part and want to store to this position. Let's say from the whole data frame you want to extract a specific column, and then you want to store that column to a particular location or to a particular object. So then you can do that as well.
कर सकते हो ऐसा? मैम स्टोर तो हम जी कहीं पे भी कर सकते हैं ना। किसी पे भी कर सकते हो. Let me show you the data type of this. What would be the data type? Series. Why series? Hmm. क्योंकि आप डेटा फ्रेम से कोई स्पेसिफिक कॉलम एक एक्सट्रैक्ट column. कर रहे हैं, राइट? तो जो डेटा फ्रेम बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है ना. सो इन केस यू आर एक्सट्रैक्टिंग वन पार्ट, सो ऑब्वियसली दैट्स अ सीरीज. अगर आप 2 कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? डेटा फ्रेम होगा, Data frame. राइट? क्लियर? मैम जो हमने रेड अंडरस्कोर क्वालिटी में इसको स्टोर करा है, इसको हम सिंपली एस करके भी कर सकते हैं या कोई भी दूसरा नाम देके भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, रेड अंडरस्कोर क्वालिटी इज ठीक नॉट अ है, फिक्स ठीक है। कीवर्ड. यू कैन गिव योर नेम ठीक है। एज वेल. आप इसे लता में भी स्टोर करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल, राइट? नाउ दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. टाइप जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इन द नेक्स्ट सिंटेक्स, आप टाइप देखेंगे. सो दैट वुड बी अ सीरीज. इन केस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम यू आर एक्सट्रैक्टिंग 2 columns all together. So in case you want to extract 2 columns, what you need to do, you have to pass that into a list, Yes. right? Like this. Now here you want to extract quality and fixed acidity both. So you cannot pass 2 columns all together within same index parenthesis. You have to pass those into a list. In case you are extracting more than 1 column, so there should be a list. Is that clear to all of you? Yes. Right? So what would be the data type of this part in case we store it to somewhere? Data frame. Data frame, right now, because we have 2 dimensions multiple here. columns. We have extracted 2 dimensions. Do I need to show you that that should be a data frame, or you can check it from your end as well? You can do it from our end. You can do it, right? Yes, ma'am. ठीक है. अब आता है next. Let's say you all know that Python used 0 based indexing. Python में indexing starts from 0. That you all aware of it? Yes, ma'am. Fine. अब एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से अगर आपको you want to get something which starts at -2 till end, -2 नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी, -2 से till end तक पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. So you can do it like this as well. नॉर्मल इंडेक्सिंग जो आप पाइथन में भी करते थे, कोर पाइथन में, you used to apply that on a list or array और पर्टिकुलर स्ट्रिंग. तो सेम आप डेटा फ्रेम पे भी इंडेक्सिंग अगर करेंगे, यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम -2 टिल एंड. सो द सिंटैक्स वुड बी लाइक दिस. -2 से एंड तक आपको जितने भी हैं, ऑब्वियसली लास्ट के 2 चाहिए आपको. अगर आपका सिंटैक्स -2 कॉलन एम्प्टी अगर आप छोड़ते हैं तो इसका क्या मतलब है? उससे आगे के सारे ले लेगा, राइट? तो -2 पहले, लास्ट के -2 मतलब 2 हो गए. इन केस आई विल बी पासिंग -4, तो उसका क्या मतलब है? लास्ट के 4, राइट? और अगर मैं -2 नहीं देती हूँ, +2 देती हूँ, तो उस पे क्या आएगा आउटपुट? 2 से नेक्स्ट, which starts from 2 till end of this data frame. ठीक है? So last 2 rows you can extract. हाँ जी. एक कंफ्यूजन, एक कहीं हम लाइक जो रिवर्स ऑर्डर में दिखाने के लिए भी हम माइनस करके करते थे. I forgot that. ये माइनस में रेंज है हमारी. अगर आप सिंगल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. ये माइनस में, बिकॉज वी आर पासिंग रेंज ना. इन केस आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, रेड अंडरस्कोर df, और आपको -1 चाहिए लास्ट का, तो आपको वो भी मिल जाएगा. रेड अंडरस्कोर df इज दी डेटा फ्रेम. सॉरी, हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट करके वो इसमें मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, तो अभी ये नहीं चलेगा. ओके, ठीक है. जो मैं बोल रही हूँ वो हम सीरीज में यूज करते थे, जो हम रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को डिस्प्ले करते थे. डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो. डेटा फ्रेम सीरीज दोनों में कर सकते हो आप. आप डबल कॉलम इधर भी यूज कर सकते हो. जो इंटरवल था वो भी आप इधर यूज कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टार्टिंग इज फ्रॉम 0 एंड टिल 2 तक आपका जाएगा. इसका इंडेक्स का, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स का क्या मतलब है? स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल 2.
So 2 is excluded. Yes or not? Yes. Last जी। range is excluded. यहाँ जी, पे ma'am. आपकी लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड होगी. क्लियर? तो इस केस में वो आपको 0 और 1 देगा. और अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं यहाँ पे, let's say 5 and I write it like this, इसका मतलब starts from 3 till 5 and 5 is excluded. 3 4 right? 3 4 दो आपको मिलेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अगर आप रोज एंड कॉलम दोनों में सब सेट करना चाहते हैं एक साथ, कि स्पेसिफिक रो चाहिए एंड देन दिस कॉलम दैट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, देन यू कैन अप्लाई अ सिंटेक्स लाइक दिस. व्हाट दिस सिंटेक्स मीन? डेटा फ्रेम एंड the first part is the row selection and the second part is column selection. Do you guys remember that अगर आपकी एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट पास करते थे तो we used to fetch that particular value using two index parentheses. yes ma'am. Right? आप ये वाला पार्ट आप सेम कोमा से सेपरेट करके भी कर सकते हैं. राइट. राइट ना? वही था नेक्स्ट. कोमा से सेपरेट करके भी कर सकते हैं. You can write it like this as well. ठीक है? Within index. Right. So 0 till 1 is the row and this column. जो भी इस पोजीशन पे जो भी रिकॉर्ड होगा आपको मिल जाएगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आप लॉक और आई लॉक यूज करेंगे, so what will be the syntax? किस सिचुएशन में हम लॉक लगाते हैं, किस सिचुएशन में हम आई लॉक लगाते हैं. So lock, I lock, basically lock is for the label based indexing and I lock is for the integer based indexing. That's clear to all of you? Yes. Yes. So here what we are doing, we are using iLock, means you want to index based on integer, and the part which is before this comma, that is row, this one, and this part is column. So 0 till 4 is the row and 1 till 4 is the column. You can do it like this as well. मैम Yes. अगर हम यहाँ पे लॉक लगा रहे होते तो जो हमने कॉलम में दिया 1 to 4 में हम वही कॉलम नेम देते, राइट? Ritika, sorry, Lata, your question is here. ओके. अगर आप ऐसा पास करोगे, ये मैंने पहले से ही आपको ये सिंटेक्स में दिया हुआ है, बिकॉज वी आर यूजिंग iLock here, so iLock में इंडेक्स होगा. अगर आप लॉक के साथ इंडेक्स दोगे तो इट विल थ्रो एरर, बिकॉज लॉक इज बेसिकली फॉर लेबल. और डिफॉल्ट लॉक किस पे चलता है? इंडेक्स पे. अगर आप यहाँ पे आपका सिंटेक्स, लेट मी कमेंट दिस एंड लेट मी राइट इट लाइक दिस. अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं, red_df .lock and 0 to 4, तो ये क्या चलेगा? Will that work? नहीं. No. कितने लोग नो बोल रहे हैं, कितने लोग यस बोल रहे हैं? चल जाएगा मैम. अभिषेक, you saying yes? Lata, you saying yes? यस चलना. All yes or all no? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. ये बताओ ये सिंटेक्स चलेगा या नहीं? यस, इट शुड वर्क. मैम चल जाएगा. मैम चल जाएगा. क्यों चल जाएगा? मैम You should know the reason as well, right? Why this will work? मैम अगर कॉमा लगा के कॉलन लगा देना तो चल जाएगा ये. Sorry? अगर कॉमा लगा के कॉलन लगा दें कोमा तो आई लगा थिंक के, चल जाएगा. कोमा लगा के ये कॉलम रो लगा तो दे. ले रहा है ना ये. मैम रो दे रहे हैं हम, रो ये- में तो You are saying कि अब चल जाएगा? हाँ, कॉलम सारे आ जाएंगे और रो आ जाएगी 0 to 4 तक. ये नहीं चलेगा ऐसे. मैम मैं क्या क्योंकि लॉक तो उस पे चलता है ना, इंडेक्स पे. इंडेक्स पे नहीं चलेगा ना. अगर आप तो इसको level ऐसा पे लिखते चलता हैं तब लेवल पे. अब नहीं चलेगा या चल चलेगा. रोज खुलेगा 0 to 3, 0 to 4. नहीं लेगा, रोज को कैसे ले लेगा? लॉक है ये, आई लॉक नहीं है. मैम ये नहीं चलेगा.
बिकॉज रौनक लॉक नहीं चले। लॉक यूज चल जाएगा। लॉक यूज कर रहे हैं। लॉक चल जाएगा। में हम लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग लेते हैं, तो ठीक है, अभी बटरस्कॉच पार्ट लेवल दैट्स परफेक्ट। आप बताइए लता, ये क्यों चल जाएगा? बिकॉज मैम रोज में 0 to 4 इंडेक्स वही पास करेंगे ना, उसमें लेबलिंग वैसे तो नहीं हुई है। योगेश चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं मैम, एक्चुअली ये लेवल पे लॉक तो उधर लेवल पे काम करता है। तो अभी ये चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अभिषेक, मैम ये अगर हमारे जो इंडेक्स हैं उन वो इंटीजर ही वैल्यू हैं तो फिर ये चल जाना चाहिए। exactly, वही मेरा भी concern है। that's वही what I मेरा भी want to concern tell है। you, हाँ, that the Yes. label of your index is this, so it will 0 work, to राइट। right ना? लेकिन कॉलम में ये इंडेक्स नहीं है, इसलिए आपका ये सिंटेक्स ऊपर वाला नहीं चलेगा, राइट। this one. So lock is basically for label, अगर label ही आपके numbers हो then तो चलेगा, obviously जाएगा, काम करेगा। वो चलेगा। ये अगर इस केस में ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ नहीं पे चलेगा। रो कॉलम्स दोनों दे रहे हो, लेकिन इस केस में ये चल जाएगा। हियर आप इसको कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर देंगे। यस, इस केस में ये चल जाएगा, क्योंकि मैम because उसके here इंडेक्स you are accepting only rows, you were not Right. talking about the column, right? Yes. क्लियर है? अगर आप कोई चीज यस और नो, देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश क्या करो कि व्हाई दिस वर्क, व्हाई दिस विल नॉट वर्क, और ये दोनों का मतलब एक ही है, इधर यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस, हाँ, उसमें ऑल कॉलम ही उठाएगा वो। राइट? राइट। क्लियर है? अभी कंफ्यूजन इस चीज पे नहीं होना चाहिए। व्हेन वी से लॉग, दैट इज ऑब्वियसली अ लेबल, बट इन केस योर लेबल इज इंटीजर, देन ऑब्वियसली you will be passing that value. राइट। Make sense? इसमें But using lock, you cannot apply index for columns. What we were doing there. तो column This name, particular part. Right? column name. यहाँ पे आप लेबल जो आपका रो का पार्ट है, that is okay. But the column labels are not like this. अगर आपके column label भी 1 and 4 है, then ये चल जाएगा। एक्सिस 1 पे नहीं चलेगा ये। Axis 1 पे नहीं चलेगा। फिर हमें एक्सेस भी देना पड़ेगा। नहीं देना नहीं है, नहीं, वैसे ही चल जाएगा नॉर्मल में। एक्सेस 1 मींस कॉलम, हाँ, राइट? क्लियर है ना अभी ये? यस। It will not work, and why it will not work, that's clear to all of you, because here you are passing integer based value and you are using log, and log basically works for labels, not for the position or index. In case you are passing it like this, it will work, because here row label is 0 till 4, that's what you can pass, and then you are passing the name of the columns, which is the label. Make sense? Yes, ma'am. Right? In case you want to extract a specific column like this, then you can pass the name of column within a list. If more than one column, right? And for iLog, what does this syntax mean? सेकंड एंड थर्ड रो देगा वो। Why third row? Before comma is row, मैम कॉमा है ना, after comma is column. So third Second. column and second row, सेकंड रो। right ना? रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है? सो अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको सबसेट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, इन केस यू वांट टू सबसेट योर आउटपुट लाइक दिस, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस डेटा फ्रेम फॉर दिस कॉलम, एंड दिस कॉलम में मुझे ये चाहिए, आई कैन अप्लाई कंडीशन लाइक दिस एज वेल। This data frame, this column, red underscore df is the data frame, and the column residual sugar, जिसमें आपको 2.3 वाली वैल्यू चाहिए, single criteria you want to apply, so you get the output like this, यस Right? यस। अगर more than one condition लगानी है तो
एंड We have operators as well. And or not, greater than, less than, equals to, ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं. Clear? So इस केस में if this condition and this condition will get true, you will get the output. Your data is sorted based on the applied condition. You can use or as well and as well. I think हम ये चीज replace no, I think वो डिक्शनरी में होता था ना रिप्लेस वाला. नहीं नहीं, ये रिप्लेस नहीं कर रहा है लता. We are subsetting a specific part. वहाँ पे No, नहीं ऊपर चेक कर रहा है ये चेक कर रहा है कि जो रेजिडुअल शुगर आपका कॉलम है उसमें मुझे 2.3 वाली जो रिकॉर्ड है उसकी सारी वैल्यू चाहिए, एंड टोटल सल्फर डाइऑक्साइड में विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 मुझे वो चाहिए. Based on this criteria, you want to extract your value. Let's say you have a particular column and you want to extract where you have all the values related to Lata, or let's say which is more than or less than 10. तो आप उस तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं ना. मल्टीपल क्राइटेरिया भी आप पास कर सकते हैं. इसी के अंदर अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं डायरेक्टली ड्रॉप करना चाहूँ बाकी सारे कॉलम्स को, तो फिर ड्रॉप से हो जाएगा. ड्रॉप में इन प्लेस लगा के आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएंगे इसे, एक्चुअल डेटा में नहीं करेंगे उसे. मतलब इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. एक्चुअल डेटा में इन प्लेस से कर सकते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लीजिए. बिकॉज़ आप कोई भी कंडीशन लगा के अभिषेक, जब आप अपना डेटा फिल्टर करेंगे तो आप उसे वैलिडेट करने के लिए भी तो आपके पास डेटा सेट होना चाहिए ना. यस मैम. राइट, तो you can store that to a different object. जो भी कंडीशन लगाते हैं आप इसे यहाँ स्टोर भी तो कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में. फिर इन प्लेस स्टोर कर दो. राइट, सो वो भी एक डेटा फ्रेम बन जाएगा आपका. क्लियर? ये आप इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सारी कंडीशन आप यहाँ लगा सकते हैं. द सिंटैक्स वुड बी सिमिलर टू दैट. मैम इस पे मल्टी लेवल फिल्टर भी लगा सकते हैं ना. वो भी लगा सकते हो आप. एक लेट्स से आपको और की बहुत सारी कंडीशन देनी है, एंड की बहुत सारी कंडीशन देनी है, देन यू हैव इजन कीवर्ड एज वेल. इजन से चेक करा सकते हो. दैट्स अ फास्ट मेथड, राइट? फाइन. अभी नेक्स्ट इज आप किसी भी डेटा फ्रेम पे लाइक दिस यू कैन अप्लाई. जो इजन की मैं बात कर रही थी, इजन यू कैन आल्सो अप्लाई लाइक दिस. यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई इस डेटा फ्रेम में, दिस कॉलम एंड दिस कंडीशन, दिस डेटा फ्रेम एंड दिस इज द कंडीशन, एंड यू कैन सबसेट योर आउटपुट बेस्ड ऑन द कंडीशन. फाइन. आप इसी में इजन भी यूज कर सकते हैं. इजन मीन्स आपने डेटा फ्रेम के क्वालिटी कॉलम में जहां भी 5 और 8 है वो आपको चाहिए, राइट? इजन विल वर्क लाइक दिस एज वेल. इजन आप पहले भी मल्टी लेवल फिल्टरिंग में पढ़ चुके हैं. द सेम सिंटैक्स वुड बी अप्लाई फॉर इजन. एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? नो मैम, नॉट येट. नाउ इन केस यू वांट टू सॉर्ट योर डेटा, सो सॉर्टिंग जो होगी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स होगी, मींस वैल्यू होगी, या फिर बेस्ड ऑन इंडेक्स होगी. यू हैव 2 ऑप्शन अवेलेबल फॉर द सॉर्टिंग. सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शॉर्ट वैल्यूज कर रहे हो, क्योंकि इंडेक्स तो आपका ऑलरेडी शॉर्टेड है. इंडेक्स 1 2 3 4 ही तो दिया है आपको डिफॉल्ट, राइट? सो दैट इज ऑलरेडी शॉर्टेड. इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिया है. अब यहाँ पे इस डेटा फ्रेम को आप जो शॉर्ट करना चाह रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज. और वैल्यूज पे जब आप पूरे डेटा फ्रेम को शॉर्ट कर रहे हो तो किसी ना किसी कॉलम को आपको की बनाना पड़ेगा. कि शॉर्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट, आप शॉर्टिंग किसके बेसिस पे कर रहे हो, दैट यू नीड टू पास इनटू अ बाय कीवर्ड. सो शॉर्टिंग आप फिक्स एसिडिटी कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हैं. तो आप यहाँ देखिए फिक्स एसिडिटी कॉलम जो है डिफॉल्ट, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट आ जाएगा बेस्ड ऑन फिक्स एसिडिटी. आप यहाँ पे देखिए आप इनकेस मोर देन 2 कॉलम पास करते हैं कि मुझे फिक्स एसिडिटी के बेसिस पे भी शॉर्ट करना है एंड रेजिडुअल शुगर के बेसिस पे भी आपको शॉर्ट करना है. सो उस केस में हाउ इज इट पॉसिबल टू शॉर्टिंग द होल डेटा सेट बेस्ड ऑन 2 कीज? कैन वी लिस्ट पास कर देंगे. लिस्ट पास तो कर देंगे ना, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, बट इज इट लॉजिकली पॉसिबल टू शॉर्ट योर होल डेटा बेस्ड ऑन 2 कीज?
नो नहीं मैम, या तो उसके बेस पे उसके एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं फिक्स एसिडिटी को, तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू पूरे रो चेंज हो रही है आपकी एंड द होल कॉलम्स गेट चेंज्ड। तो पहले आपने इसके बेसिस पे चेंज किया तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए जब इसके बेसिस पे चेंज करेंगे तो 1.4 पहले आ जाएगा रौनक, 1.4 पहले आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस फिक्स एसिडिटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो या तो शॉर्टिंग फिक्स एसिडिटी के बेस पे हो पाएगी या फिर आपकी रेसिडुअल शुगर के बेस पे ही हो पाएगी। क्लियर है ना? फाइन। सो नेक्स्ट इज, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना चाहते हो तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इक्वल्स टू होता है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उस केस में आपको असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट करना पड़ेगा। इससे पहले वाला जो हमारा कोड था, दिस वन हियर असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू, दैट वाज द डिफॉल्ट केस, इसलिए वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा है। इफ यू वांट टू चेक इट लाइक दिस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस केस में आप असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर दो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर यूजिंग अ रैंक मेथड। बेसिकली रैंक मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रैंक ऑफ एवरी रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सीरीज पास। अब ये शॉर्टिंग करेगा बेस्ड ऑन, जैसे हमें ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में आपके पास पीएच कॉलम है, तो पीएच कॉलम के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, राइट? पीएच कॉलम में कोई वैल्यू होगी, लेट्स से वहां पे 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, लाइक दिस। सो उसमें शॉर्ट करेगा, पहले शॉर्ट करके लेट्स से 10, 5, 6 है, तो वो तीनों की रैंक कैसे हो जाएगी, 10 वाले की 3, 5 वाले की 1 और 6 वाले की 2। लेट मी शो यू लाइक दिस। एक एक्सेल में आपको दिखाती हूँ रैंक कैसे काम करता है। लेट्स से आपके पास कोई भी पीएच कॉलम है, ये दिस इज द पीएच कॉलम, राइट? पीएच कॉलम में आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, वैल्यू है आपकी 10, 4 एंड 6 एंड 3। सो इसके बेसिस पे अगर हम इसका पीएच का हम रैंक निकालें तो रैंक पता है क्या होगा इसका? इसका रैंक होगा टोटल कितने, 4, राइट? और 4 को अगर शॉर्ट करेंगे तो दिस इज द 4 एंड दिस इज 2 and this is 3 and this is 1. That makes sense to you or not? Yes ma'am. जो भी उसके रिकॉर्ड हैं उन टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट किया और बेस्ड ऑन दी वैल्यूज उनको रैंकिंग कर दी। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स थे, जिन चारों को अगर आप शॉर्ट करते हो तो 3 आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, 4 आपका सेकंड नंबर पे आएगा, 6 आपका थर्ड एंड 10 इज 4। तो यहाँ पे उस आउटपुट को उसने चेंज नहीं किया, उसका सारा रैंक निकाल के उसके आगे उस रैंक को दे दिया है। So that is 4 rank, that is 2, that is 3, that is 1. Rank is an option, although I'll be discussing about the use cases of rank as well. But here you go ahead with the method how to apply a rank. Clear हो गया ये? तो rank उसने कैसे निकाली? और इस rank को निकाल के हम ph_rank नाम से एक कॉलम बना दिया है। उसमें स्टोर करवाया, उसमें उसने स्टोर कर दिया है। Any confusion to anybody? Sorry? By default, मैम इसमें by default जो है हमारी जो मैक्सिमम रैंक होगी उसकी मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी मैक्सिमम रैंक है। हाँ, obviously। ठीक है। देखिए ये हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अपने डेटा नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं। विल बी कवरिंग दोस पार्ट्स। अभी सिर्फ आप ये समझो कि रैंक हम क्यों निकाल रहे हैं, व्हाट, हाउ टू फेच द वैल्यू ऑफ रैंक, हाउ दिस हैज बीन कैलकुलेटेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रैंक कैसे कैलकुलेट हुई है? रैंक फंक्शंस, राइट। अब नेक्स्ट हमने देखिए जिस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का रैंक निकाल के ph_rank में स्टोर किया है, वैसे ही हमने दिस डेटा फ्रेम white_df डेटा फ्रेम का ph कॉलम का रैंक निकाल के इस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर किया। मतलब दोनों के लिए हमने 2 नए कॉलम बना लिए हैं, फॉर red_df एज वेल एंड फॉर white_df एज वेल। ph_rank नाम से दोनों के लिए हमने बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ अ ph कॉलम हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है।
एनी कंफ्यूजन? एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कोई नया कॉलम हम ऐड कर रहे हैं, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। फाइन। नो मैम। Let's say now you are applying a describe function on this. So जो आपने रैंक निकाली, रैंक के बेसिस पे अब उस पे आप स्टैटिस्टिक समरी अप्लाई कर रहे हो. You want to get the description of this column and you get the output of count. यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि the maximum rank is what? 1598 and total number of columns records कितने हैं हमारे पास? 1599 and the average rank is 800 and कितना deviate हो रहा है? Deviation कितना है? That is 461. Minimum is 1. Lower quartile is 406. Upper quartile is 1194 and the median is 803. यहाँ पे आप देखिए मीन और मीडियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. Yes, ma'am. Right? So you don't have much outlier in your data set. We'll be covering those parts in statistics. अभी आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं बनती है कि what that exactly mean. आप दूसरे डेटा फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसे. अब इन दोनों डेटा फ्रेम में रैंक के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम रिकॉर्ड आपके पास रेड अंडरस्कोर डीएफ में है या व्हाइट अंडरस्कोर डीएफ में है. मैक्सिमम वैल्यू रेड अंडरस्कोर डीएफ की क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, एंड फॉर व्हाइट अंडरस्कोर डीएफ मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, लोअर अपर क्वार्टाइल कितना है, so that you can get this summary of your particular data or the column. Excuse me, ma'am. Yes. मैम स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कैसे देखेंगे कि हमारे उसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है इस डेटा सेट के लिए? बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको ये पता चलता है कि हाउ योर डेटा इज डेविएटेड अराउंड द मीन. मीन से कितना, अब यहाँ पे 1413 वैल्यू है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की एंड द मीन इज 2449. सो जो डेटा मीन से डेविएटेड है दैट इज 2449 plus 1413 and 2449 minus 1413 plus minus standard deviation. उससे आपका how your data is spread around the mean ये आपको पता चलता है. ठीक है? We'll be covering those parts in detail during statistics. Don't worry with that. But आपने अभी कहा था ना कि मीन और मीडियन में हमारा ज्यादा. अभी यहाँ पे मीन और मीडियन, यहाँ पे देखिए मीन इज 800 एंड द मीडियन इज 803. सो यहाँ पे आपको देखिए पता चल रहा है कि डेटा में ऐसा बहुत ज्यादा आउटलायर नहीं है. मीन और मीडियन की वैल्यू दोनों की ऑलमोस्ट सेम है. और यहाँ पे अगर मीन और मीडियन की वैल्यू देख रहे हैं आप तो 2449, यहाँ पे 2491 है. सो यहाँ पे that is not the problem of your outlier वहां पे नहीं है, लेकिन जो डेटा का डेविएशन है वो काफी प्लस माइनस जा रहा है. डेटा आपका कितने क्वार्टाइल तक स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1413 है बेस्ड ऑन दिस मीन वैल्यू, तो डेटा डेविएट काफी कर रहा है प्लस माइनस अराउंड द मीन. दैट्स व्हाट यू कैन चेक. राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको ये पता चलता है हाउ योर डेटा इज स्प्रेड. मीन के अराउंड डेटा पॉइंट्स कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है. ठीक है? नहीं अक्रॉस द टेबल कहाँ, अक्रॉस द रैंक के बेसिस पे कर रहे हैं हम अभी. हाँ राइट राइट ओके राइट. नाउ इन केस यू वांट टू कंबाइन टू डेटा फ्रेम्स ऑल टुगेदर, हाउ यू विल बी डूइंग दैट. अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट रेड अंडरस्कोर डीएफ के सारे कॉलम्स निकाले, देन व्हाइट अंडरस्कोर डीएफ के सारे कॉलम्स निकाले. दीज आर द ऑल कॉलम्स रिलेटेड टू दीज टू डेटा फ्रेम्स. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर नाम से एक नया कॉलम हम बनाते हैं इन रेड अंडरस्कोर डीएफ एज वेल एंड इन व्हाइट अंडरस्कोर डीएफ एज वेल. और यहाँ पे रिपीटेडली वो सारे रेड कलर लेगा फॉर रेड अंडरस्कोर डीएफ में एंड व्हाइट अंडरस्कोर डीएफ में व्हाइट कलर लेगा. That's what we have created. अभी यहाँ पे अगर इसका शेप देखोगे तो आपका एक कॉलम बढ़ गया है. This column you have created. अभी तो वो क्योंकि चेंज हो गया है तो अभी दिखा देगा एक्स्ट्रा. पहले आपके पास कलर कॉलम नहीं था. Now you have created this as well. कलर कॉलम आप क्रिएट कर दिया है and that is added into white as well.
check if the new series is created. अब यहाँ पे देखिए, you see color column is there into this data frame. Can you see? यस मैम। This color column. Yes. अगर आप पहले data frame को अगर check करेंगे तो वहां हमारे पास color column नहीं था. If you check it like this, starting में जहां भी हमने data frame import कराया है, आप यहाँ चेक करेंगे स्टार्टिंग में, so we don't have that particular column. This has been created right away. वो जो ऑब्जेक्ट में है वही दिख रहा था, कलर जो कॉलम आपने नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है।